سامان مامان پریتونا ارشی زم تباہ شویره. السلام علیکم ناظرین، میں شیرین زادہ ہوں. مشہور کوکارے جامبل السلام علیکم ناظرین، میں شیرین زادہ ہوں اور اس وقت منگورہ میں موجود ہوں. آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مین مشہور کوکارے جامبل ندی اس کو کہتے ہیں، منگورہ خور بھی اس کو کہتے ہیں. تو اس نے بہت زیادہ مکانوں کو، دکانوں کو، مارکیٹوں کو متاثر کیا تھا. آج سیلاب کو گزرے ہوئے تقریباً 22واں دن ہے. آج کیا صورتحال ہے؟ سیلاب متاثرین کس حال میں ہے؟ آیا بحالی کا کام شروع ہوا نہیں ہوا؟ بحالی کے کام ختم ہوئے نہیں ہوئے؟ اب تک کیا صورتحال ہے؟ آج وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام آئے تھے اور انہوں نے بھی جو جتنے افراد اس سیلاب میں بہہ گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، ان کے لواحقین کو 20 لاکھ روپے کا چیک بھی دیا ہے. تو ہمارے ساتھ اس وقت سینئر صحافی فضل خالق خان موجود ہے. ان سے جانتے ہیں کہ چونکہ اس کا تعلق بھی یہاں منگورہ سے ہے اور زیادہ تر ان کا آنا جانا ہے اس طرف. تو ٹائم دینے کا شکریہ. کیا کہیں گے فضل خالق خان، کیا صورتحال ہے؟ آج 22واں دن ہے سیلاب کو گزرے ہوئے. جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا. اس طرح ہے کہ آج 22واں دن ہے اور سوات میں جو سیلاب اس دفعہ آیا ہوا ہے وہ تاریخ کا بدترین سیلاب تھا. اپنی زندگی میں اور اپنی بزرگوں سے ہم نے اب تک اس حوالے سے جتنا سنا ہے، اتنا پانی کبھی نہیں آیا تھا. اور اسی وجہ سے اس کے نقصانات بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. سیلاب 2 علاقوں میں آیا، یہ ضلع بنیر میں آیا اور ضلع سوات میں آیا. تو سوات میں یہاں پہ مالی نقصانات جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں. بنیر کے سائڈ پہ جانی نقصانات مالی بھی ہوئے لیکن جانی نقصان سائڈ پہ زیادہ تھا. منگورہ شہر کا یہ حال ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جگہ جگہ پہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. لوگوں کے جتنے نقصانات ہوئے ہیں، فلاحی ادارے بھی کام کر رہے ہیں، حکومتی ادارے بھی کام کر رہے ہیں. لیکن اگر میں اس نقصان کے تناظر میں دیکھوں تو یہ ان کے منہ میں زیر والی بات بن رہی ہے، کیونکہ لوگوں کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو پورے کرنے میں کافی ٹائم لگے گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومتی سطح پر، بڑی سطح پر بھی کام ہوتا تو لوگوں کی بحالی ہو جاتی. آج میں ایک محلے میں آ رہا تھا تو وہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہے وہ اپنی گھروں کی صفائی میں اب بھی لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اپنی مدد آپ کے تحت پہ زیادہ کام ہو رہے ہیں. جو تنگ گلیاں ہیں اور زیادہ تر جو کرایہ دار لوگ ہیں وہ تو جہاں جہاں سے یہ ندی گزرتی ہے اس مقام کے گھروں کو، دکانوں کو خالی بھی کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے سجیشن اگر دینا پڑے تو ہم یہ کہیں گے کہ حکومت کو ان علاقوں کی ریسٹوریشن پر بھی کام کرنا چاہیے اور مستقبل کے لیے بھی لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ اصل میں ان پانی کے راستوں کو روکا گیا تھا. تو اس سلسلے کو جب تک ختم نہیں کیا جاتا، مستقبل میں بھی اس طرح کے سیلاب آنے کے خدشات رہیں گے. تو سب سے پہلا جو کام کرنا ہے بحالی کے ساتھ ساتھ اس پانی کے بہاؤ کے راستوں کو بھی کھولنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. کل دوبارہ جو ہے نا، چونکہ میں نے خود تو نہیں دیکھا لیکن چنا مارکیٹ یہاں ہمارے پریس کلب اور آس پاس علاقوں میں دوبارہ سیلاب آیا تھا. تو کیا وہ صورتحال ہے؟ آپ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اسی کا نتیجہ ہے جو راستے بند ہے، پانی کا بہاؤ جو جاری ہے؟ یہ ہوا تھا کہ ابھی تو ہنگامی صورتحال ہے اور لوگ جو ہے وہ اپنی گھروں کو صاف کر رہے ہیں، دکانوں کو صاف کر رہے ہیں، لیکن گندگی جو ہے وہ پانی کے راستوں پہ ڈالتے ہیں، یعنی نالوں میں ڈالتے ہیں، اس فڑ میں ڈالتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ پانی جو ہے وہ اوپر آ کر پھر ان کے گھروں میں واپس جاتا ہے. تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام میں دینا چاہوں گا کہ وہ کم از کم صفائی اس طرح کریں کہ پانی کے راستوں کو کھلا چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں اس وقت ہمارے جو لوگ متاثر ہے وہ
तकरीबन हम कह सकते हैं कि 50% या 80% या 40% बहाल हो चुके हैं। ये मैं इस तरह कहूंगा कि बहाली तो बहुत दूर की बात है, बहाली तो अभी नहीं हुई है। अभी सिर्फ ये है कि उनको अपने पांव पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। और ये मैं समझता हूँ कि 50% अगर काम हो गया तो ये तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अभी तकरीबन 30-40% पे हम जा रहे हैं और इसमें अभी बहुत सारा काम अभी बाकी है। तो इस हवाले से ये भी है कि हंगामी सूरत हाल है तो हुकूमत के अकेले करने का नहीं है, फलाही तंजीमें जो है उनको भी अपना काम करना चाहिए। इसमें बहुत से इदारे ऐसे हैं, अल खिदमत है, जमीयत उलमा इस्लाम के वो है, मुख्तलिफ सियासी जमातों की भी है और हमारी वासत जो है बादशाह खान वेलफेयर भी है, बादशाह खान वेलफेयर भी है, जितनी भी है। अगर मैं किसी का नाम न ले तो माजरत, लेकिन सभी तंजीमों ने अच्छा खासा काम किया है और आगे भी उनको काम करना पड़ेगा। मतलब सैलाब मुतासिरीन को हमें अकेला नहीं छोड़ना, किसी सूरत अकेला नहीं छोड़, क्योंकि अभी भी सूरत हाल ये खदशात मौजूद है। खुदा न खास्ता अगर फिर ये सूरत हाल बन जाती है तो फिर इन लोगों की दोबारा बहाली बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मैं ये खबर का जो मंजर है वो आपको दिखाऊं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा जो है ना, ये मेन नदी है मिंगवारा शहर में, इसने जो तबाही की है वो सारा इस नदी ने की है। तो आप देख सकते हैं कितनी मतलब ये गहराई है इस वक्त, और ये बिल्कुल तकरीबन इस मतलब इस ज़मीन से, ये जो नदी का जो ज़मीन है यहाँ से तकरीबन 15 फीट ऊंची सैलाब जो है ना वो दीवारों पर अगर आप निशान देखें तो 12 से 15 फीट ऊंची लहरें थी और इसमें वो नहीं आ रही थी, यानी जो प्याला है वो मतलब कम था और पानी बहुत ज़्यादा था। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। सैलाब मुतासिरीन की बहाली का काम जो है ना वो जारी है, हुकूमती सतह पर भी, इंफरादी सतह पर भी वो लोग लगे हैं और वो काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें जिस तरह हमारे दोस्त फजल खालिद खान ने कहा कि फलाही इदारों को भी आगे आना चाहिए और वो कर भी रहे हैं, लेकिन इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन ने एक और काम शुरू कर दिया है और वो ये है कि वो लोगों की जो चीज़ें ख़राब हुई है उसको मुरम्मत कर रहे हैं, यानी जो बिजली के सामान है, फ्रिज है वगैरह। और इसी तरह वो आज उन्होंने ऐलान किया कि वो जो घरों की जो बिजली इनकी ख़राब है वो भी वो ठीक करेंगे। तो इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि अल खिदमत फाउंडेशन भी थोड़ा सा जो इनका जो कैंप है वो आपको दिखाऊँ, आपको बता सकूँ कि वहाँ क्या सूरत हाल है। तो साथ रहे, वहाँ चलते हैं और फिर मज़ीद कुछ चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो अल खिदमत फाउंडेशन की ये कैंप किस हवाले से है मैंने आपको पहले भी बता दिया था, लेकिन इस वक्त मैं उस जगह पे आया हूँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो अशिया है उसको रिपेयर करते हैं। इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम क्या है आपका और बताएं कि कितने दिन से आप लोग ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मुरम्मत कर रहे हैं? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग तकरीबन नाम क्या है आपका? हजरत उमर नाम है। हजरत उमर, कांजू टाउनशिप को। ठीक है, बिल्कुल सही है। और खासकर बराबांडे को, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने ये इशू सोच किया कि यार हम लोग जो इधर बहुत से लोग हैं वो कोई पानी निकालना था, कोई मिट्टी निकालना था, लेकिन हम मैकेनिक लोग को ये खासकर अभी खिदमत के वक्त है कि हम आकर और लोगों की खिदमत करें। तो ये हमारे आइडिया था और हम आए इस जमात इस्लामी लोगों से मिला, यार हम लोग इधर काम करना चाहिए कि हम लोगों को खिदमत करें। ठीक है। तो इसलिए उन लोगों ने मेरे को ये जगह दिया और बिजली भी दिया और पानी भी दिया। और दूसरी बात ये है कि हर पार्टी वाला चाहिए कि इधर आकर खिदमत करे, या अकेले ये जमात इस्लामी वाला और खिदमत फाउंडेशन वाला काम नहीं है। मतलब तमाम लोगों की बनता है। मैं खुद एनपी का आदमी हूँ, लेकिन इधर जमात इस्लामी में आकर इन लोगों को साथ देकर खिदमत कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। तो हर आदमी को चाहिए कि वो एनपी को सियासत से बलातर होकर इधर काम लोगों को खिदमत करे, और खिदमत जो है ना वो इबादत है। बिल्कुल ठीक, बेहतरीन। तो और दूसरी बात ये है कि हम लोग यहाँ
आए हुए हैं, लेकिन इधर अगर हम सफाई करें तो काम नहीं होता, जब काम करते तो सफाई नहीं होते। तो मेहरबानी ये चाहिए कि पहले सर्विस में सर्विस करे, सर्विस स्टेशन तो हमारे पास है, तो सारा सिस्टम है, लेकिन बात यह है कि इधर सारा काम तो हम नहीं कर सकते, कभी उस तरफ भागना पड़ेगा, कभी इस तरफ, इसलिए ये जो सामान जमा हो चुके हैं ये बंदों की वजह से जमा हो चुके हैं। आम लोग अगर आकर ये सर्विस हमारे लिए करे, ये दो ले सामान, तो हम मरम्मत का काम करेगा और वो ये चीज मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप दोनों काम करते हैं, यानी धोने का भी करते हैं और फिर मुरम्मत भी करते हैं, तो इस वाले से थोड़ा सा वो मुश्किल पेश आ रही है। और इधर बिजली आती जाती है तो वो ये वापडा वालों को चाहिए कि खुसूसी तौर पर इस लैंड को बिजली बहाल रखे, बहाल रखे कि हम लोग ये काम खत्म हो करें, सके, मुतासिरी के काम है हमारे ठीक है। बहुत शुक्रिया। इजहार, आप क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है, अब तक कितना मतलब मुरम्मत का काम हो चुका होगा, कितने अभी आ रहे हैं लोग? बिल्कुल बहुत ज़्यादा आ रहा है, और मसला ये है कि ये जो वॉशिंग मशीन है परसों तकरीबन 20 जो है ना एक दिन में आपने इधर कारीगर लोगों ने सही कर दिए। जिस तरह तकरीबन 70-80 जो है ये एक्सरे वगैरह सही की, इस तरह तकरीबन 60-70 जो है ना तो पानी की जो मोटर है इस तरह ये मोटर सही कर दिए, और इस तरह ये और जो छत के पंखे और ये जो दूसरे पंखे ये सही कर दिए, और मुसलसल लोग और भी आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी जगह कम है। हम उस लोगों को बोल रहे हैं कि आज आप सब्र करें, आप लोग कल आ जाए, ताकि जो ये काम ये सामान कम हो जाए तो फिर जगह का मसला बच जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी वॉशिंग मशीन वगैरह आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप अंदर दिखाए पूरा, तो ये हर जगह मतलब इतना उनके लिए पार्ट्स वगैरह जो है ना लाना, ये भी एक हकीकत है कि अलखिदमत वाले तो कर रहे हैं, इनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पंखे वगैरह पूरा ये सिस्टम इनका लगा हुआ है, और ये बेचारे जो है ना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके लिए थोड़े से मसाइल है, और मसाइल जगह की भी है, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा है, यानी सामान बहुत ज़्यादा है और जगह कम है। तो इन लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब मजीद जो है ना वो ज़रूरत। रहमान रहीम, रिपेयरिंग का काम तो ये पूरा इलाका मुतासर हुआ है, और सारा सामान जो है उसमें ज़ाहिर ये बात है ख़राब हो चुका है जी। तो सामान बहुत ज़्यादा है। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि कारीगर को भी ज़्यादा कर रहे, एक जगह की थोड़ा सा मसला है। दूसरा ये कि ग्रेजुअली लोग अगर अपने सामान लाते रहे और काम होता चले, इस तरह चलता रहे, तो मुश्किल जो है वो आसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कारीगर यहाँ लगाए ताकि लोगों की मसाइल हल हो। बिल्कुल। इसके साथ साथ हमने एक दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया है कि जो छोटे कारोबारी लोग हैं, मसलन तंदूर है, मोटरसाइकिल वर्कशॉप है, या टेलर्स मास्टर्स है, तो उस पर हमने काम शुरू किया है। कोई 5-6 दुकानें जो है उसकी सारी अंदर रिपेयरिंग और उसका जो ज़रूरी सामान है उसका वो हम फराहम कर रहे हैं, और इस तरह ग्रेजुअली हम आगे बढ़ेंगे ताकि ये लोग अपने पाँव पर खड़ा हो सके और अपने कारोबार, मतलब राशन और इस चीज़ से अब जो है ना वो हो रहा है। वो उसके साथ आज भी 200 अफराद को हम रिलीफ दे, वो मुसलसल आज 22वां रोज है। हाँ, रोजाना 200 की बुनियाद, 200 कभी 300 ये हम दे रहे हैं। वो तो अपनी जगह है, लेकिन वो तो वक्ती रिलीफ है। मुस्तकिल हम चाहते हैं कि आबादगारी के सिलसिले में हम लोगों की मदद करें, और उसके लिए हमने सबसे पहले जो छोटे कारोबारी लोग हैं, मसलन मुख्तलिफ रश के जो है वो इस सैलाब में ख़राब हुए, तो 5-6 रश की उसकी हम रिपेयरिंग कर रहे हैं। इस तरह और भी जो छोटी छोटी गाड़ियाँ, जो सब्जियाँ वगैरह के छोटे गाड़ी होते हैं, उसकी हम रिपेयर कर रहे हैं, और उसकी सब्ज़ी के लिए और उसके थोड़ा बहुत पैसे उनको दे के उसमें डाल के, ताकि वो अपना काम शुरू कर सके और अपने बच्चों की किफ़ालत कर सके। तो इंशाल्लाह कोशिश करें जितना हमारे इस्तिताअत के मुताबिक हो सके हम करेंगे। बिल्कुल सही। नहीं, अलखिदमत पर लोगों को यकीन है, और इंशाल्लाह बेहतर तरीके से आप लोग निमट जाएंगे, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ही मददगार है। तो आपको थोड़ा सा मैं ये नज़ारा इसलिए करवा रहा हूँ कि ये कोई मामूली काम नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में वॉशिंग मशीन, मुख्तलिफ चीज़ें, ये फ्रिज वगैरह अगर आप इस तरफ देखें तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। इसी तरह ये मेडिकल कैंप पूरा, मतलब अस्पताल, लेबॉर्ट्री वगैरह ये सब लगा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये मंजर आपको दिखाऊं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी जो यहाँ पर फ्रिज वगैरह यहाँ पर उन्होंने रखे हैं। अब
یہ کب بنیں گے یہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن جگہ کی مجھے لگ رہا ہے کہ چونکہ تعداد بہت زیادہ ہے اور اس سیلابی ریلے میں بہت سارے برج جو ہے نا وہ بہہ گئے ہیں، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے لوگوں کا. سورالي دلتا دمارورا زمنګ کورونه تباه شوي دي، زمنګ هر څه تباه دا شوي. کوم ځای نوم دې څه دی؟ بختور خان جی. او زمنګ دا کو سامان مامان پریټونه هر شی زموږ تباه شوی دی. زمنګ حکومت ته دا درخواست دی چې موږ سره دې مدد وکړي، موږ سره دغه وکړي، راسته وکړي. ولې چې زمنګ ډېر پریشانی ده په موږ باندې. زمنګ کمبلې تباه دي، زمنګ پلیسټرې تباه دي، زمنګ کټونه تباه دي، زمنګ هر شی تباه دی. نه موږ ته راشن میلاو شي، نه موږ ته دغه صرف دا جوړې را راکړه، دا جوړې کې کیم غاړه او نور زموږ بس د پدې باندې راکړه زما جوړې نه وي، زموږ دا بچو جوړې نشته. نو پدې باندې رالو چې وروره زموږ سره راسته وکړئ. تاسو دې الله خوشحاله کړي، تاسو په